तो ये बात जिसे कहते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है. तो that is why he used very simple language. There was a time when meadow, grove and stream and every the earth and every common sight to me did seem apparelled in celestial light. देखिए celestial का मतलब तो आसमानी होगा ना, apparelled in celestial light. So it means that Wordsworth is in his imagination becomes a child. देखें पोइम का टाइटल आप देखें, रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. समझिए ना, अर्ली चाइल्डहुड की जो यादें हैं उसके बारे में जिसे कहते हैं वो बात कर रहा है. तो कहते हैं देयर वाज अ टाइम व्हेन meadow, grove and stream, the earth and every common sight to me did seem apparelled in celestial light, the glory and the freshness of a dream. अब देखें, one thing is very much important to understand these in these 5 lines. Wordsworth is at the height of his imagination. Wordsworth is recreating that very world that he had been experiencing at the time when he was kid. उसको दोबारा से recreate कर रहा है. तो you know that he is at the height of his imagination. Imagination की height पे चला जाता है. Imagine आप उस चीज को करते हैं जो चीज दूर होती है. अब देखें, आप 2 साल की बात को imagine करेंगे और दूसरी तरफ आप जब वो आप 30 साल पहले की बात को इमेजिन करेंगे, वेयर योर इमेजिनेशन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्गर. जाहिर है वहां पे जब आप बहुत पहले की बात कर रहे हैं ना, सो दैट इज व्हाई ही व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट अर्ली चाइल्डहुड, तो जाहिर है हिज इमेजिनेशन टू इमेजिन दैट वेरी टाइम ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड, हिज इमेजिनेशंस आर वेरी स्ट्रांग. ये तो बहुत स्ट्रांग इमेजिनेशन है. ही इज एट द फ्लाइट ऑफ हिज इमेजिनेशन इन हिज 4 लाइंस. ऐसे लगता है जिस तरह के वो अब बच्चा बन गया है. Once again that he is going to experience that world that he had been experiencing. जी, फिर आगे ये क्या कहता है? It is not now as it hath been of yore. Yore mean past time. मतलब अब ऐसा नहीं है जिस तरह पे. Now he is coming back to his present time. His imagination weakens. इससे हम कहते हैं ना कि sometime he is on the turf of imagination, sometime he is on the crest of imagination. समझिए ना. तो इट इज नॉट नाउ एज इट हैथ बीन ऑफ योर. तो मतलब ये कि he goes at the height of his imagination in these 5 starting lines, and the 6th line he comes back, realizes his present state. समझिए ना. तो फिर आगे कहता है turn whatever I may by night or day the things. अब यहां पे फिर जिसे कहते हैं वो he goes once again to the imagination. उसकी imagination once again इतनी strong हो जाती है कि उसको वो सारा कुछ दिखाई देता है कि जब वो बच्चा था तो वो क्या कुछ करता रहता था. समझे. तो फिर उसे ये रियलाइज होता है कि अब वो सब कुछ नहीं है. वो imagination नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है जहां कहीं में जाता था. by the night or the day the things which I had seen I now see no more. Once again he comes down. देखें, वो जिसे हम कहते हैं ना कि वो पेंडुलम की तरह जिसे कहते हैं, he sways from one to another concept of imagination. फिर जिसे कहते हैं he goes to the height of imagination. वो कहता है the rainbow comes and goes. अब देखें, अब तो और ज्यादा जिसे कहते हैं height of imagination पे चला गया है कि यहाँ पे तो उसने past tense यूज किया कि there was a time. अब यहाँ पे तो present time यूज कर रहा है. So it means that he is well placed in order to envisage and to bring that past life experience again and to bring those days live again. अब तो उसमें he is quite well equipped and well placed. दोबारा आपको ऐसी दुनिया दिखाता है कि जिस तरह वाकई अब once again that he is a kid. तो आप देखें कितना इमेजिन करता है. The rainbow comes and goes, the lovely is the rose, the moon doth with delight look round her when heavens are bare, waters in starry night are beautiful and fair. The sunshine is a glorious birth, but yet I know wherever I go that there hath passed away a glory from the earth. फिर दोबारा वापस आ जाता है. देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएंस ऑफ इमेजिनेशन. ही फ्लक्चुएट करता है. Sometimes imagination are very strong, sometimes they become weak. Sometimes he is very strong and he
brings those past days live again. He brings those past days a reality, a broad day reality before him. हमें लगता है कि वो बिल्कुल बच्चा है, जिस तरह देखें उसी तरह लगता है ना। ये आपको लगता है कि क्या कोई एक जिसे कहते हैं बूढ़ा वर्ड्सवर्थ उसने लिखा होगा? The rainbow comes and goes, the lovely is the rose, the moon doth with delight look round her when the heavens are bare. Waters on a starry night are beautiful and fair, the sunshine is glorious birth. But यहां तक देखें वेरी कितना खूब वो प्लीज्ड नजर आता है, कितना खुश नजर आता है इसमें। खुश इसलिए है ना कि इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होगी है। वंस अगेन ही इज एबल टू इमेजिन वेरी क्लियरली हिज पास्ट लाइफ। फिर उसके बाद कहता है बट का मतलब ही यू टर्न होता है। जब आप बट कहते हैं तो आप वापस आ रहे होते हैं। बट yet I know wherever I go that there hath passed away a glory from the earth. फिर वापस आ जाता है to his present state. Fluctuance of imagination. Imagination cannot stay for the longer time. अब आपको बात समझ में आई मेरी? मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि imagination longer time के लिए stay नहीं करती. The rare human passions, they do not stay for the longer time. That is why he tries to give them longevity and immortality. Keats की बात कर रहा हूं। इसने कहता forever wilt thou love and she be fair. ये loving and being fair जो है ये तो टाइमली बात है। ये तो टाइमली बात है जी। दुनिया में लव की जितनी भी ग्रेट कहानियां हैं वो सारी की सारी जुदाई की कहानियां हैं, वो मीटिंग की नहीं है। मेरे ख्याल में मैंने वर्ड्सवर्थ के अलावा सॉरी बर्टन रसल और अभी तक जो थोड़ी बहुत जो रीडिंग है मेरी, इट्स नॉट अ ग्रेट रीडिंग, तो उसमें मैंने जिसे कहते हैं वो एक बर्टन रसल ने एक अपनी वाइफ पे पोएम लिखी थी और एक लिखी थी इसने किसने लिखी थी? टॉमस हार्डी। ये दो पोएम्स मैंने जिसे कहते हैं अभी तक पढ़ी है। बर्टन रसल वाज नॉट अ पोएट। बर्टन रसल पोएट नहीं था, लेकिन बहरहाल आउट ऑफ हिज लव फॉर हिज वाइफ तो ही हैड रिटन द पोएम। कभी मैं आपको जिसे कहते हैं वो पोएम आपको मैं बताऊंगा, उसकी ऑटोबायोग्राफी के शुरू में है, बहुत खूबसूरत पोएम है। तो आप देखिएगा वर्ड्सवर्थ वाज सॉरी बर्टन रसल वाज नॉट अ पोएट, वो पोएट नहीं है, इस फिलोसोफर, लेकिन स्टिल ही रोट दैट पोएम। तो इसलिए जिसे कहते हैं वो आप हीर रांझा, ससी पुन्नू, सोनी माईवाल जी और लैला मजनू, ये सारी जो आप कहानियां पढ़ते हैं, आर दे द स्टोरीज ऑफ मीटिंग आर पार्टिंग? पार्टिंग की कहानियां है ना, मीटिंग की तो नहीं है। बिकॉज लव सीज टू एग्जिस्ट इन दैट सेंस ऑफ द वर्ड आफ्टर मैरिज। यही बात जिसे कहते हैं बेकर ने कही है, इफ ऑल मेड्स आर गुड व्हेंस कम द बैड वाइफ। वो सारी अगर मेड्स अगर अच्छी हैं तो ये बुरी वाइफ किधर से आती है? ये भी तो गुड मेड थी ना सम टाइम, तो अब क्यों नहीं रही? तो उसका मतलब ये है कि व्हेन एवर यू अपीयर टू हैव समथिंग इट सीज टू बी ब्यूटिफुल फॉर यू। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि रोमांटिक्स का कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी जो है वो इंचांटमेंट ऑफ डिस्टेंस है। इट इज अ डिस्टेंस दैट इज ब्यूटिफुल एक्चुअली, नॉट अ थिंग इन इटसेल्फ। डिस्टेंस होगा तो इमेजिनेशन परवान चढ़ेगी ना। Had there been no distance at all, you see me, अगर आप मुझे अपनी क्लास में जब बैठे हुए देख रहे हैं, क्या आप मुझे इमेजिन कर रहे हैं? इसका मतलब है नो, यू आर सीइंग मी। तो वर्ड्सवर्थ जब कहता है इन अ सॉलिटरी रीपर्स behold her single in the field yon solitary highland lass, कि उसको देखो, सॉलिटरी रीपर जो है वो इन द फील्ड yon solitary highland lass, lass का मतलब वही होता है मेड, यस। तो वो देख तो इमेजिनेशन से रहा है ना वर्ड्सवर्थ। उस वक्त वर्ड्सवर्थ नेवर रोट अ पोएम एट द स्पॉट, ऐसा तो उसने कभी नहीं किया ना। ही ऑलवेज वुड राइट पोएम्स आफ्टर दैट व्हेन ही इज बेटर प्लेस्ड टू राइट समथिंग। देखिए ना, द डैफोडिल्स जब वो लिखता है तो उसमें वो लिखता है ना कि व्हेन ऑफ्ट ऑन माय काउच आई लाई दे वो क्या है, द फ्लैश अपॉन माय इनवर्ड आई व्हिच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो मतलब तो यह है कि वक्त गुजर चुका है ना, तो ये तो इमेजिन कर रहा है। तो दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स, इमेजिनेशन जिसे कहते हैं जब होगी तभी रोमांटिक पोइट्री होगी ना। दैट पोइट्री इज द
Poetry is the poetry of imagination, isn't it? So past को imagine करना, distance जितना ज्यादा होता है उतना imagination strong होती है. I told you that Wordsworth, when he was writing about his experiences when he was kid, छोटा बच्चा था, तो how strong is his imagination? तो उसकी imagination जिसे कहते हैं वो कितनी strong है, उसकी मैंने आपको मिसाल दी है. देखिए ना, कहता है कितने इसके पीछे खुशी का अंदाज आपने देखा, इसके पीछे आपने देखा ये बच्चा ही ऐसी बात कर सकता है. जब वो कहता है, the rainbow comes and goes and lovely is the rose, the moon doth with delight look round her when the heavens are bare, waters on a starry night are beautiful and fair, the sunshine is a glorious birth. तो जब वो ये बात कहता है, so it looks quite as if that he is enjoying the ecstasy to become a kid once again. तो ये एक रोमांटिक शायरी बुनियादी तौर पे ये होती है. They are retrospective, romantic poetry retrospective है. अच्छा, romantic हमेशा माजी में झांकने वाला इंसान होता है. His poems are retrospective picture galleries. So Keats wants to make that rare and short-lived, very transient passions of human life, he wants to make them eternal. उनको eternal करने की जिसे कहते हैं वो कोशिश करता है. देखिए, एक इंसान जिसे कहते हैं वो how much that a man would have been feeling that when he is quite near to his goal. यहाँ पे उसने लिखा था ना, किधर है था, though winning near your goal, किधर है जी, where is that? ये. When he is, and the goal is this is the goal, right? And he is quite near to achieve his goal. So उस वक्त इंसान की क्या feelings होती हैं? क्या वो feelings जिसे कहते हैं stay करती हैं? नहीं stay करती, they are transient. वो कभी transient होती हैं. वही बात है, दोबारा मैं आपको repeat कर रहा हूं. One only loves actually distance. बस इस distance को बरकरार रहना चाहिए. एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं. वर्जीनिया वुल्फ की टू द लाइट हाउस, उसका जो नॉवल जो है, आई टॉक्ड अबाउट इट यस्टरडे एज वेल, इफ यू कॉस्ट योर माइंड बैक. तो उसमें एक जगह पे जो वो नियर एट द लास्ट सेक्शन ऑफ दैट वेरी नॉवल, वो यहाँ पे वो ये लिखती है कि डिस्टेंस हैड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर. डिस्टेंस हैड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर. ये बिल्कुल ये इसी तरह से लिखा हुआ है, आप ये जरा देखिएगा. डिस्टेंस हैड an extraordinary power. Who says that? Virginia Woolf. Virginia Woolf. और नॉवल कौन सा है? To the Lighthouse. जब भी हम टाइप करते हैं तो हम हमेशा जो वो वर्क जो है उसको इटैलिक्स में कर देते हैं. अच्छा, To the Lighthouse में उसने कहा, distance had an extraordinary power. That is the very theme of that novel. मेरे ख्याल में कल भी मैंने इस पे डिस्कस किया था. ब्लूज एंड ग्रीन्स आपको याद है? तो उसमें ब्लूज जिसे कहते हैं वो ग्रीन ब्लूज जो है वो डिस्टेंस के लिए स्टैंड करता है ना. तो डिस्टेंस हैड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर. तो ये जिसे कहते हैं वो, तो बिकॉज इन द डिस्टेंस इमेजिनेशन थ्राइव. इसका ये मतलब मैं लूंगा ना यहाँ पे, बिकॉज इन द डिस्टेंस imagination thrives. Imagination का जिसे कहते हैं वो परवान ही वहीं पे चढ़ती है जहां पे distance की बात की जाती है. So students, Keats here wants to make that rare passions of human into eternity. उसको eternal बनाने की जिसे कहते हैं वो एक attempt है. So यहाँ पे भी आप देखें ना, happy bows that cannot shed. ये सारा जितना भी, all of that we have had. Parching tongue, थके हुए भी हैं, पसीना भी आया हुआ है, but still they are very very pleased. वो बहुत ज्यादा pleased हैं. एक नॉवल मुझे याद आ रहा है ये पढ़ते हुए कि अब यहाँ पे देखें, the boy is quite near his goal, yes, and he has his love, जो भी है.
अब यहाँ पे जिसे कहते हैं वो एक नॉवल है, टेस ऑफ द डर्बविल्स। टेस ऑफ द डर्बविल्स इज रिटन बाय थॉमस हार्डी। तो वहाँ पे एक जगह पे लिखता है कि एंजल क्लेयर एंड टेस ऑफ द डर्बविल्स दे वर अलोन एंड दे वर गोइंग टू दे वर वर्किंग इन द टलबॉथी डेयरी, और डेयरी का जो दूध जो होता है वो वहां पे एक ट्रेन पे बेचते होते हैं। तो दे वर गोइंग फॉर दैट एंड दे वर अलोन एंड लवर्स एक्चुअली ऑलवेज डिजायर दिस थिंग बट व्हेन दे आर अलोन, ये उनकी डिजायर होती है ना। तो वहां पे जिसे कहते हैं वो देयर वाज रेन, तो आसमान को देख के उस ग्रे स्काई को दैट सेंड्स अ मैसेज टुवर्ड्स देम एंड द मैसेज इज एंटायर लोनलीनेस व्हिच द लवर्स ऑलवेज डिजायर। तो उस पे वो एक बात कहती है टेस, या वो वहां पे कहती है कि आई शुड नॉट हैव कम। ये छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं इनका बहुत बड़े मतलब होते हैं, इनके पीछे एक हिस्ट्री होती है, इनको डिग इन करने की कोशिश किया करें हमेशा। तो जो इंसान डिजायर करता है वो उसको अनडिजायर कर रही है। व्हाई? दैट शी हैड अ बर्डन दैट वंस इन द पास्ट शी हैड बीन डिफ्लावर्ड। ये बर्डन लेके इंसान जिंदा रहता है। बहरहाल वो दैट इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट दिस नॉवल इज इन योर कोर्स। वो नॉवल आपके कोर्स में है बीएस में, आगे आप पढ़ेंगे या अभी आपके पास नॉवल है? नो सर, इस सेमेस्टर नहीं है। इस सेमेस्टर में नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में है आपके पास, फिफ्थ में, फिफ्थ और शायद सिक्स। सर है। हाँ, फिफ्थ और सिक्स दोनों में है। फिफ्थ में आप पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ द डर्बविल्स और सिक्स में आप पढ़ेंगे टू द लाइट हाउस। ठीक, तो ये नॉवेल्स हैं और बहुत जबरदस्त नॉवेल्स हैं। चलें, ठीक है जी। तो that leaves the heart high sorrowful and cloyed, a burning forehead and a parching tongue. So you might have understood this thing. अब आपको इस बात की समझ आई होगी यहाँ पे। Okay, we are going ahead. We have just only 2 stanzas left. Who are those coming to sacrifice to what green altar, O mysterious priest? इसका मतलब है कुछ और भी है जो कि उस अर्न के ऊपर engraved है। सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ वहां पे एक दो लवर्स और ट्रीज और वो अ मैन दैट हु प्लेज फ्लूट, सिर्फ यही नहीं थे, कुछ और भी है। व्हाट इज दैट? कहता है कि हु आर दीज कमिंग टू द सैक्रिफाइस टू व्हाट ग्रीन ऑल्टर, ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, लीडस्ट thou that heifer lowing at the skies and all the silken flanks with garland dressed? What little town by river or seashore or mountain built with peaceful citadel is emptied of this folk, this pious morn, and little town thy streets forever will silent be and not a soul to tell. वो लोग जिसे कहते हैं जो सैक्रिफाइस करने के लिए हैफर को लेके नीचे आए हुए हैं और कभी भी जिसे कहते हैं वो जिस जगह से आए हैं तो वो दे हैड पुट दैट लैंड डिजर्टेड, दैट विलेज डिजर्टेड, और उसके बारे में कहता है इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक, इज एम्प्टीड ऑफ इट्स फोक दिस पायस मॉर्न। अब वो वहां पे जिसे कहते हैं गलियां बिल्कुल वीरान और सुनसान है। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी एंड नॉट अ सोल टू टेल। यस। So once again, the permanence of quietness, once again the permanence of a sacrifice. लोग हैं जो जिसे कहते हैं जिनके सामने एक प्रीस्ट है जो उनको गाइड कर रहा है। मिस्टीरियस उसे कहा ही इसलिए है ना कि ये सारी की सारी वर्ल्ड जिसे कहते हैं वो जो वहां पे जो दैट इज इनग्रेवन अपॉन दैट अर्न इज एक्चुअली मिस्टीरियस, वो सारी की सारी मिस्टीरियस है। इसका मतलब यह है कि मरने वाले इंसान जिन्होंने मरना था वो अभी तक नहीं मरे, वही बातें जो मैं बार बार आपके सामने करता रहा हूं। ठीक है, तो इसीलिए उसको मिस्टीरियस कहा है ना। तो जो सबको लीड कर रहा है एंड कमिंग टू द ऑल्टर in order to sacrifice heifer. Students, heifer is a male cow young or a female cow young? फीमेल सर। और मेल को क्या कहते हैं? आपने एक कहानी पढ़ी होगी, दैट इज इन द होली कुरान, बाइबल में भी ये है, द गोल्डन काफ।
यस सर पढ़िए। पढ़ी है ना? अब उसमें Yes, sir. ये तो सूरह बकरा के जिसे कहते हैं पहले जिसे कहते हैं वो कोई 20-30 आयतों में भी एक आयत है कि when Moses went to the Mount of Sinai for Yes, sir. for 40 days, and you had made a golden calf and worshipped it, and you have cursed yourself by that way. और तुम लोगों ने अपने ऊपर जुल्म किया, ऐसे ही है ना? तो calf is the male cow's young, and the heifer is the female. Okay, lowering at the skies. So this is the message of the sacrifice and eternity of that sacrifice as well. The eternity of the quietness as well. Khamoshi. For this thing that the people are very serious in order for their sacrifice. That is once again the eternity. What thou art desolate can never return. Why thou art desolate can never return. O Attic shape, fair attitude, with breed of marble, men and maiden overwrought, with forest branches and a trodden weed, thou silent form dost tease us out of thought as doth eternity. देखिए अब उसने बात कर दी है ना वही बात. When you put us out of ourselves, so it means you have put us, us mean the mortal people. When you have put us into eternity, इसका मतलब यही है ना? Cold, pastoral, when old age shall this generation waste, thou shall remain in midst of other woe than ours, a friend to man to whom thou sayest. जब हम लोग भी जिसे कहते हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग भी जिसे कहते हैं वो मर जाएंगे, this generation waste, thou shall remain, उस वक्त भी तुम जिंदा रहोगे और हमारे गमों के दरमियान तुम जिसे कहते हैं वो हैप्पीनेस का मैसेज दोगे एज अ फ्रेंड टू मैन जी, और उस मैन को तुम ये कहते रहोगे हमेशा. तो दिस इज द मैसेज ऑफ द अर्न, जो कि मैसेज इंसान को मैसेज जो अर्न इंसान को मैसेज देता रहेगा वो ये है, beauty is truth, beauty, that is all you know on earth and all you need to know. So that is why this is in inverted commas. Inverted commas में भी इसीलिए है ना, because this is the statement of the urn, the final statement of the urn. So beauty mean anything that is aesthetically compact, जिसका aesthetics से ताल्लुक होता है ना. Truth is that is morally compact. So anything that is aesthetically compact and at the same time morally compact. इस पे बहुत बहस की जा सकती है. मैं इन दो आखिरी लाइंस को जिसे कहते हैं कल पे छोड़ता हूँ, हम इन पे कल बहस करेंगे. ठीक है? Beauty is truth, beauty, that is all you know on earth and all you need to know. I will give you the references of the critics के references दूंगा. I will explain that beauty, the concept of beauty and truth, मैं ये explain करूंगा. I will show certain disagreements to this very statement, और फिर बहुत कुछ मैं आप पे छोड़ूंगा कि अब after that you have been fed by me regarding understanding of those two lines, अब आप कि इस बारे में क्या सोच है.